प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। प्रभु ने आपको पूरा हफ्ता संभाल के रखा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर उपस्थिति के लिए, ये सुंदर दिन के लिए। आपने आज का दिन दिखाया सुंदर प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद देते। पूरा हफ्ता संभाल के रखा प्रभु यीशु, हर एक दुष्ट की योजनाओं से बचा के रखा प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ पिता। आपको हम सब अपने घरों में है पिता, आपका अनुग्रह की दृष्टि हम पर है प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद देते। आज की प्रभु यीशु सभा में प्रभु यीशु आपने हमें ऑनलाइन के जरिए प्रभु यीशु जोड़े रखा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। आपको जितना धन्यवाद दो प्रभु यीशु उतना कम है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आप प्रभु यीशु आशीष, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हम पे बना है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रभु यीशु सिंगर्स को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु, जैसे वो हमारी अगुवाई करेंगे पिता। आपका प्रभु यीशु अनुग्रह, आपकी बुद्धि उन पे बनी रहे प्रभु यीशु। आज के वचन पे प्रभु यीशु आपका आशीष मांगते प्रभु यीशु, सुनने वाला प्रभु यीशु से सुन के ग्रहण करे प्रभु यीशु, और वो आशीषित हो प्रभु यीशु। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। Hi everyone, good morning. I just want to share something with you. You know, one of my favorite times during church service is testimony times. I love to hear, how God has touched the lives of people and, the great things that God has done in people's life, and it really stirs up our faith. And, sometimes you feel that when will I go up and give my testimony? But I want to encourage you today and tell you that, we all have a testimony. The greatest testimony is that we are saved by grace, and that Jesus has, brought us from death to life, to eternal life. And that is our greatest treasure, our greatest prize, our greatest testimony. So, we all can come up and say that, we have been saved by grace, and then we all have a great testimony of God's faithfulness and His loving kindness. So let's sing this song today. It's a new song. It's called My Testimony, and let's just sing along, the powerful lyrics. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. My praise belongs to you forever. This is my testimony, from death to life. 'Cause grace rewrote my story, I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony, this is my testimony. Oh, 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 oh. Come together, sons and daughters, bought in blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Our God will finish what He started. This is my testimony, from death to life. His grace rewrote my story, I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony, this is my testimony. Oh, 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 oh. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come.
Oh, I believe I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, 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 oh. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, हमें इतना प्यार करने के लिए प्रभु, इतने गहराई से हमें प्यार करने के लिए प्रभु। तेरे प्यार को कोई नहीं नाप सकता प्रभु। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तू प्यार का सागर, सागर दया का है। गहराई मेरे सागर की, ऊंचाई मेरे आसमां की। गहराई मेरे सागर की,
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अब समय है दान और दशमांश का। परमेश्वर हमें हमारे आर्थिक क्षेत्र में आशीषित करना चाहता है। वो हमें हमारे फाइनेंस में ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे परख कर देखो और मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। दान और दशमांश ये परमेश्वर की एक आज्ञा है जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। आइए हम अपना उत्तम अपने परमेश्वर को खुशी के साथ दें। आप अपने टाइट्स एंड ऑफरिंग यानी कि दान और दशमांश ऑनलाइन भी दे सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स अभी स्क्रीन पर होगी। आप अगर ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि आप किस रीति से आप अपने टाइट्स एंड ऑफरिंग दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई प्रार्थना विनती है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Church, it's time for the Holy Communion. कलीसिया, अब समय है प्रभु भोज का। I hope you kept the two elements ready, आशा करता हूँ कि दोनों वस्तुओं को आपने तैयार करके रखा होगा, the bread and the cup. रोटी और प्याला। I want to encourage you as a family to be around these two elements. और मैं उत्साहित करूंगा कि आप परिवार मिलकर प्रभु की मेज के इर्द गिर्द आए, With full reverence and with the fear of God and with repentance. पूरे आदर और परमेश्वर के पवित्र भय और सच्चे पश्चाताप के साथ। Because it reminds us of the Lord's great sacrifice of death, burial and resurrection. क्योंकि ये प्रभु भोज हमें याद दिलाता है हमारे प्रभु के महान बलिदान, उसकी मृत्यु, उसके गाड़े जाना और उसके पुनरुत्थान के बारे में, And His second coming, awaiting for His second coming. और उसके दूसरे आगमन का हम इंतजार कर रहे हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, I thank you पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ that you will bless this bread and this cup कि आप इस रोटी और इस प्याले पर आशीष देंगे, as a symbol of the Lord's body and the Lord's blood. जैसे कि ये चिन्ह है हमारे प्रभु की देह और हमारे प्रभु के लहू के। Help us to partake in the worthy manner. हमारी सहायता करें कि हम योग्य रीति से इसमें भाग लें। Lord, bring healing to the sick body. प्रभु, बीमार शरीर में आप चंगाई दें। Bring light in the dark world. जहाँ अंधकार है वहाँ पर आपकी रोशनी आए। Bring financial blessing प्रभु, आर्थिक आशीष लाएं and mature us as children of God. और परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें परिपक्व बनाएं। Father, I thank you पिता, मैं आपको धन्यवाद करता as हूँ we partake this communion in a worthy manner. कि हम इस प्रभु भोज में योग्य रीति से हिस्सा लेंगे। I make this prayer in the name of Jesus. मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Now you may partake this communion in your homes. अब आप सभी अपने अपने घरों में प्रभु भोज लें। By your mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, we remember you. And remembrance leads us to worship. And as we worship you,
It gives me great delight to introduce the guest speaker मुझे बड़ा ही आनंद हो रहा है हमारे विशेष प्रचारक का परिचय देने में, for today and for next Sunday. जो आज और आने वाले रविवार हमारी सेवकाई करेंगे। He is married to my eldest sister Luella, मेरी सबसे बड़ी बहन लुएला के पति हैं and they both have been serving the Lord for the past 28 years. और वे दोनों पिछले 28 वर्षों से परमेश्वर की सेवकाई में हैं। They have 2 sons उनके 2 बेटे हैं and 2 grandsons. और 2 पोते भी हैं। Pastor Soter De Silva is a president of New Life Movement International. न्यू लाइफ मूवमेंट इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हैं पास्टर सॉटर डि सिल्वा। He is an excellent Bible teacher वे एक उत्तम बाइबल के शिक्षक हैं। who not only teaches God's word वे न केवल परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, but models it in his daily lifestyle. लेकिन अपने प्रतिदिन के जीवन शैली में उसका अनुसरण भी करते हैं। I am sure we all will be blessed by the word God has put in his heart. और मुझे पूरा भरोसा है हम सभी आशीषित होंगे उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला है, For today and for next Sunday. आज के लिए और आने वाले रविवार के लिए भी। Welcome you, Pastor Soter De Silva. पास्टर सॉटर डि सिल्वा, आपका स्वागत है। Warm Christian greetings to all of you, and it's such a joy and a privilege and an honor for us to bring to you the word of the Lord in your homes. और मसीह का अभिवादन आप सबको। हमारे लिए आनंद और सौभाग्य की बात है कि आपके घरों में आप तक परमेश्वर के वचन को हम ला सकते हैं। In Luke chapter 6 verse 38, Jesus said, लूका अध्याय 6 वचन 38 में यीशु ने कहा, He said, "Give and it shall be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men put into your bosom. For with the measure God you give, the same measure it will be measured back to you." यीशु ने कहा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। So what I'm going to share with you this Sunday as well as the following Sunday is in the area of giving. तो जो मैं वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ इस रविवार और आने वाले अगले रविवार को भी, वो है देने के क्षेत्र में। Giving is one of the most fulfilling parts of the Christian life. देना एक मसीही जीवन का सबसे अधिक संतोषजनक कार्य है। Throughout the Bible, we are encouraged to be generous in our giving. पूरे पवित्र शास्त्र में हमें उत्साहित किया गया कि हम हमारे देने में उदार बने। In fact, there are more verses related to giving than any other subject on finances in the Bible. बल्कि हम देखें बाइबल में पैसों के क्षेत्र में देने के ऊपर सबसे अधिक वचन है। And I believe with all my heart, faith comes by hearing the word of God, money comes by giving. और मैं पूरे दिल से इस बात पर विश्वास करता हूँ कि विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुनने से और धन आता है उसको देने से। Faith comes by hearing, money comes by giving. विश्वास आता है सुनने से और पैसा आता है देने से। And I want to share with you 3 aspects of giving. और मैं आप सबके साथ देने के विषय में 3 पहलू बांटना चाहता हूँ। Number 1, how should we give? सबसे पहला पहलू है कि हमें कैसे देना है, Whom should we give? हमें किसको देना है And how much should we give? और हमें कितना देना है। Whom should we give? How should we give? Whom should we give? And how much should we give? कैसे देना है, किसे देना है और कितना देना है। So how should we give? The word of God encourages us to give with a proper heart attitude. तो हमें किस प्रकार देना है, तो परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हमें सही मनोभाव के साथ देना है। We need to give out of a heart of love. हमें प्रेम भरे हृदय से देना है। In 1 Corinthians 13 verse 3, Paul says, पहले कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 3 में पौलुस कहता है, he says, "If I give all I possess to the poor, but have not love, I gain nothing." वो कहता है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। So Paul is very clear, the word of God is very clear, we need to give with a proper attitude, with the attitude of love. तो वचन में प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि हमें प्रेम के मनोभाव के साथ देना जरूरी है। In fact, John 3:16, God himself is a good example in the area of giving. बल्कि यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं एक बेहतरीन उदाहरण है देने के विषय में। The Bible says God so loved the world, he gave his only begotten son.
बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। So God gave Jesus to us with an attitude of love. परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए दे दिया एक प्रेम के मनोभाव के साथ। Even in Ephesians 5 verse 25, the Bible says Christ loved the church, he gave himself to the church. और इफिसियों अध्याय 5 वचन 25 में भी हम पढ़ते हैं कि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, इसलिए अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। So God is a good example in giving with an attitude of love. तो परमेश्वर हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है प्रेम के मनोभाव के साथ देने का। And so we as the children, we need to follow the example of our Father and the Lord Jesus Christ. इसलिए हम परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें हमारे स्वर्गीय पिता का और प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण का अनुकरण करना है। So how should we give? We need to give in love. तो हमने देखा हमें किस प्रकार देना है, हमें प्रेम के साथ देना है। And number 2, we need to give cheerfully. और दूसरा हम देखते हैं कि हमें खुशी से, हर्ष से देना है। 2 Corinthians 9 verse 7 says, दूसरे कोरिन्थियों अध्याय 9 वचन 7 में लिखा है, it says, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। So when it comes to giving, we need to give cheerfully, joyfully, happily and exuberantly. तो जब देने की बात आती है तो हमें खुशी से, हर्ष से, आनंद से, उल्लास से देना है। And so how should we give? We need to give in love, we need to give cheerfully. हमें किस प्रकार देना है? हमें प्रेम के साथ देना है और हमें खुशी से देना है। Now whom should we give? अब हम देखेंगे कि हमें किसको देना है। We need to give to God first. तो सबसे पहले हमें परमेश्वर को देना है। And giving to God first, this is where I want to dwell this Sunday as well as the coming Sunday. परमेश्वर के देने के विषय में मैं ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ इस रविवार और आने वाले रविवार को। There's an old saying, first things first. एक पुरानी कहावत है कि पहली बातों को पहले करना चाहिए। So also in the area of our finances, we need to put God first. उसी प्रकार हमारे पैसों के क्षेत्र में भी हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। In Exodus 20 verse 2 and 3, निर्गमन अध्याय 20 वचन 2 और 3 में the Lord himself says, I am the Lord thy God that brought you out of the land of Egypt. You shall have no other gods besides me or before me. परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। So God says he has to be first in our lives. तो परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान होना है। He has to have the preeminence in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर आगे होना चाहिए सब बातों में। He needs to have the top priority in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर को सर्वोच्च प्राथमिकता हमें देनी है। And so also in the area of finances, if you put God first in your life, God will make you first in the area of your finances. उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर को हमारे पैसों के क्षेत्र में प्रथम स्थान देंगे तो वो हमें अव्वल बनाएगा। How we handle money reveals much about our priorities, loyalties and affections. हम पैसों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं इससे प्रकट होता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारी वफादारी किसके प्रति है और हमारा प्रेम या लगाव किन बातों के प्रति है। In fact, the way we handle money reveals much about our character. बल्कि पैसों के साथ हम किस तरह व्यवहार करते हैं इससे हमारे चरित्र के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। In Exodus 13 verse 1 and 2, निर्गमन अध्याय 13 वचन 1 और 2 में this passage teaches us the principles of the first. ये भाग हमें प्रथम का नियम सिखाता है। It says that the Lord spoke to Moses saying, consecrate to me all the firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and beast, it is mine. यह वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के क्या पशु के इजरायलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हैं उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह तो मेरा ही है। If God is first in our life, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम है then everything will come into order. तो बाकी सारी बातें सही ऑर्डर में आ जाएंगी। I'm not saying that you will not have difficulties, problems and challenges.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में कठिनाइयां, मुश्किलें या चुनौतियां नहीं आएंगी, but it's rather good to go through challenges and difficulties in life with everything in order rather than in disorder. बल्कि ये बेहतर है कि जीवन की कठिनाइयों का, चुनौतियों का, मुश्किलों का सामना हम सही ऑर्डर से करें, बजाय इसके कि हमारा जीवन उलझन और अस्त व्यस्त से भरा हो। So if God is not first, then nothing will come into order in our lives. तो यदि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम नहीं है, तो कोई और बातें हमारे जीवन में सही क्रम में, सही ऑर्डर में नहीं आएंगी। Same is true in the area of finances. और यही बात पैसों के क्षेत्र में भी सत्य है। In Exodus 13 verse 1 and 2, which we just read, निर्गमन अध्याय 13 वचन 1 और 2 जो अभी हमने पढ़ा, God says, "You're the firstborn of man and beast belongs to Him." He says, "It is mine." परमेश्वर कहता है कि जो पहलौठा है, चाहे वो मनुष्य का हो या पशु का हो, वो मेरा है। It is God's property. वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी, परमेश्वर की संपत्ति है। It belongs to Him. वो परमेश्वर की है। This is very important for us to understand if we have to understand the principle of the first. और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, यदि प्रथम के नियम को हमने समझना है तो। And all through the scriptures we see this principle of the first. और पूरे पवित्र शास्त्र में इस प्रथम के नियम को हम देखते हैं। Take the example of the people of Israel when they crossed the river Jordan to enter the promised land. इजरायलियों का उदाहरण यदि हम ले, जब यरदन नदी को पार करके वादा किए हुए देश में वो प्रवेश करने वाले थे, The first city they had to possess was the city of Jericho. जो पहला नगर जो उन्हें हासिल करना था वो था यरीहो का नगर। And before they could possess Jericho, what is the instruction that God gave Joshua and the people of Israel in Joshua 6 verse 19? और इससे पहले कि यरीहो नगर को वो अपने वश में करते, तो परमेश्वर ने यहोशू और लोगों को क्या निर्देश दिया, यदि ये हम देखते हैं यहोशू अध्याय 6 वचन 19 में। This is the first city they had to possess. ये पहला नगर उन्हें हासिल करना था, अपने वश में करना था। And what is the instruction God gave Joshua and the people of Israel? और क्या निर्देश है जो परमेश्वर ने दिए यहोशू को और इजरायलियों को? He says, "But all the silver and gold and vessels of bronze and iron are consecrated to the Lord. They shall come into the treasury of the Lord." सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। Remember, this is the first city they had to conquer. और याद रखें कि ये पहला नगर उन्हें अपने वश में करना था। And the Lord is saying, the first city, all the silver, gold, bronze and iron should come into the treasury of the Lord. और प्रभु उन्हें निर्देश देता है कि इस पहले नगर को जब तुम अपने काबू में करोगे, तो उसका जितना चांदी, सोना, पीतल, लोहा जो कुछ भी है, वो परमेश्वर के भंडार में आना है। But in Joshua 7 we read about of a person, Achan, who disobeyed the Lord in this area. लेकिन यहोशू अध्याय 7 में हम एक व्यक्ति आकेन के बारे में पढ़ते हैं, जिसने इस क्षेत्र में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। And when conquering the next city, Ai, they lost very badly. और इसकी वजह से उसके बाद अगला नगर जो आय नगर था, वहां पर इनकी बुरी तरह से पराजय हो गई। It was a smaller city, less powerful than the people of less powerful than the city of Jericho, but they lost the battle there. हालांकि वो आय का नगर छोटा नगर था, यरीहो के मुकाबले में कम सामर्थ्यशाली था, फिर भी इजरायलियों की वहां पर हार हो गई। And in Joshua 7 verse 11, God is giving the reason why did they find defeat with the people of Ai. और यहोशू अध्याय 7 वचन 11 में परमेश्वर उनकी पराजय का कारण बताता है। He says in Joshua 7:11, he says, Israel has sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them. For they have even taken some of the accursed things, and have both stolen and deceived, and they have also put it among their own stuff. इजरायलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। What is God saying? He uses this word, they have stolen and deceived. और यहाँ परमेश्वर कहता है कि उन्होंने चोरी की है और उन्होंने छल किया है। Now the word stolen or robbing is mentioned in Malachi chapter 3. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शब्द है चोरी करना, इसका उल्लेख मलाकी अध्याय 3 में भी है। When we don't give to God what belongs to Him, then we are stealing from God.
परमेश्वर को जो देने की बातें हैं, जब हम नहीं देते हैं तो हम चोरी करते हैं। So the principle of the first is mentioned all through the scriptures. इसलिए हम देखते हैं प्रथम का ये नियम पूरे पवित्र शास्त्र में दिया गया है। So when you give the first 10% to God, the rest is redeemed. जब हम पहला 10% अपने परमेश्वर को देते हैं तो बाकी के रकम पर परमेश्वर की आशीष आती है। Don't give the first 10% to the mall or to anyone else or to anything else. जो प्रथम 10% है, आप किसी मॉल में जाकर ना खर्च करें या फिर किसी और के लिए, किसी और खर्च के लिए, किसी और को देने के लिए उपयोग ना करें। See, the mall doesn't have the power to bless you, but God has the power to bless you. मॉल में या किसी और बात में आपको आशीष देने की सामर्थ नहीं है, केवल परमेश्वर के पास आपको आशीष देने की सामर्थ है। Turn to Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. आइए हम निकालेंगे नीति वचन का अध्याय 3 वचन 9 और 10। It says, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your possession, and that the Lord, your barns will be filled and your vats will overflow with new wine. अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। It says, then will your barns be filled and your vats will overflow with new wine. वचन में लिखा है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे और रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। When we put God first in the area of our finances, हमारे पैसों के क्षेत्र में जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, then God begins to bless us. तब परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू करता है। Another scripture we'll see in Exodus 23 verse 19. एक और वचन हम देखेंगे निर्गमन अध्याय 23 वचन 19। Exodus 23:19, it says, the first of the first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God. निर्गमन 23:19 में लिखा है, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। The Bible is clear. It says, you shall bring it into the house of the Lord. और बाइबल स्पष्ट हमें बताती है कि उसे तू यहोवा के भवन में ले आना। The first fruits you shall bring to the house of the Lord. जो प्रथम फल है उसे तू परमेश्वर के भवन में ले आना। God did not say you shall give, but you shall bring it to the house of the Lord. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम देना, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम उसे ले आना। Because it belongs to Him. The first belongs to God. क्योंकि जो प्रथम है, जो पहला है, प्रथम फल है, वो परमेश्वर का ही है। Same way we are asked to bring our tithes to the house of God. उसी प्रकार हमसे कहा गया कि हमारा दशमांश हमें परमेश्वर के भवन में ले आना है, Which is the storehouse of God. जो परमेश्वर का भंडार है। Your local church is the storehouse of God. That's where you need to bring your tithe regularly and committedly. आपकी स्थानीय कलीसिया परमेश्वर का भंडार है, परमेश्वर का भवन है, जहाँ पर आपने अपना दशांश नियमित रूप से और समर्पित रूप से ले आना है। Where we are feed week after week, never divide your tithe, never distribute your tithes. क्योंकि स्थानीय कलीसिया है जहाँ सप्ताह दर सप्ताह हमें आत्मिक भोजन खिलाया जाता है, इसलिए कभी भी अपने दशांश को हमें बांटकर अलग-अलग जगहों में नहीं देना है। You have two choices with the tithe. आपके दशांश के विषय में आपके पास दो चुनाव है। You can bring it or you can steal it. या तो आप उसे ले आ सकते हैं या फिर आप उसकी चोरी करते हैं। The people of Israel, they brought it or they stole it. इजराइलियों के विषय में भी ऐसा ही हुआ, या तो वो ले आए या फिर उन्होंने चोरी की। For example, I shared with you in Joshua 6 verse 19. जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपके साथ यहोशू का अध्याय 6 वचन 19 बांटा। God called the silver and gold consecrated or set apart when you bring it to the treasury of the Lord. परमेश्वर ने कहा कि जो चांदी सोना पीतल है, जब परमेश्वर के भंडार में तुम ले आते हो तो उसे अलग करके वो पवित्र हो जाता है। It is consecrated when you bring it to the house of God. जब हम उसे परमेश्वर के भवन में ले आते हैं तो वो पवित्र हो जाता है। But if it's cursed, if you leave it in your bank account, लेकिन यदि उसे हम अपने बैंक अकाउंट में ही रख छोड़ते हैं तो वो शापित हो जाता है। now why should we have something cursed in our bank accounts? तो फिर हमारे बैंक अकाउंट में क्यों हम कोई भी शापित वस्तु को रहने दें? Let us have our bank accounts blessed. क्यों ना हमारे बैंक के खातों पर आशीष आए।
See, 90% redeemed and blessed will go more further than the 100% which is cursed. यदि 90% जो हमारे पास बच जाता है वो आशीषित है, वो पवित्र है, तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि 100% ही हम अपने पास रखें लेकिन वो शापित हो। One more example we'll say and we'll close. एक और उदाहरण देखकर मैं समाप्त करूंगा। In Genesis chapter 4, उत्पत्ति के अध्याय 4 में we read about Cain and Abel bringing their offering to the Lord. हम पढ़ते हैं कैन और हाबिल के बारे में जिन्होंने अपनी अपनी भेंट परमेश्वर के पास लाई। In Genesis 4 verse 3 to 5 we read the story. उत्पत्ति के अध्याय 4 वचन 3 से 5 में इस कहानी को हम पढ़ते हैं। It says Cain, in verse 3 it says Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. वचन 3 में लिखा है कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। In verse 4 Abel also brought of the first fruit of his flock. वचन 4 में हम पढ़ते हैं हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से पहलोटे की भेंट ले आया। And the Bible says God accepted Abel and his offering but did not accept Cain and his offering. और बाइबल कहती है कि यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। Why was that? ऐसा क्यों हुआ? Because Cain just bought an offering but Abel bought the first fruits of his flock to the Lord. क्योंकि हम देखते हैं कैन तो कुछ भेंट ले आया अपनी उपज में से लेकिन जो हाबिल था वो अपना प्रथम फल वो पहलोठा ले आया। Not that God wouldn't accept Cain's offering. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कैन के भेंट को स्वीकार नहीं करता But he could not accept Cain's offering. लेकिन वो उसके भेंट को स्वीकार नहीं कर पाया Because God cannot be second, he is always first. क्योंकि परमेश्वर को कभी भी दूसरे स्थान पर हम नहीं रख सकते। परमेश्वर हमेशा प्रथम है। So I want to encourage you with all these scriptures I shared with you this morning, bring the first fruit, the first of the tithe into the house of the Lord. That's your local church. इसलिए इन सभी वचनों के द्वारा आज के दिन मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अपना प्रथम फल अपने परमेश्वर के भवन में आप ले आए, अपना दशांश, अपना प्रथम फल आप प्रभु को दें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this morning. पिता आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to our hearts in the area of the first, the principle of first. धन्यवाद करते हैं हमारे हृदय से आपने बात की प्रथम के इस नियम के विषय में। Thank you for speaking to us, each one of us. धन्यवाद हम प्रत्येक से आपने बात की आज। Lord, give us the grace and the strength to obey what you have taught us in your word this morning. प्रभु हमें अनुग्रह और बल दे कि जो बातें आज आपने हमें सिखाई हैं उन बातों का हम आज्ञा पालन कर सकें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। God bless you all. We'll see you next Sunday. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और अगले रविवार हम फिर मिलेंगे। Amen. आमीन।